الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر Announcement, children. وأما Today السائل فلا New Modern High School, and in this regard, Honorable Principal Madam Diana Salama has arrived, and she will be coming down to the school. आस्ताना सलामत रहे कादरी आस्ताना सलामत रहे कादरी आस्ताना सलामत रहे कादरी आस्ताना सलामत रहे
जन्मदिन चलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की जन्मदिन चलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की जन्मदिन चलते हैं मुस्तफा मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं जिस दर पर गुलामों के हालात बदलते हैं जिस दर पर गुलामों के हालात बदलते हैं आवाज़ दिया के दरबार में चलते हैं आवाज़ दिया के दरबार में चलते हैं मिलना बुला लीजिए बुला लीजिए दुख दर्द बीमारों को तैबा की ज़ियारत को दुख दर्द बीमारों को तैबा की ज़ियारत को अरमान में चलते हैं मुस्तफा मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की जन्मदिन चलते हैं मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं A hearty welcome from Nirmal High School teachers. Thank you.
When you touch your body, I'll make you happy. Know you gotta make you wanna ने वफाप है ज़ेर दीवार का बाजो मानी गई वो हंसी वो मुबारक दुआ आप है ए हबीबे खुदा ए हबीबे खुदा ए हबीबे खुदा ए हबीबे खुदा कहकशा आपकी राह की धूल है चांद तारे हैं नक्शे कदम आपके कहकशा आपकी राह की धूल है चांद तारे हैं नक्शे कदम आपके ख्वाब ज़ैन की शरह क्या हो बयां ख्वाब ज़ैन की शरह क्या हो बयां अर्श पर जब के जलवानुमा आप हैं ए हबीबे खुदा ए हबीबे खुदा ए हबीबे खुदा ए हबीबे खुदा ज़ेर दीवार का बाजो मानी गई
हंसी वो मुबारक दुआ आप हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब Today, we gather to celebrate the spirit of freedom, unity and the sacrifices. 79 years ago, our country was ruled by others, but brave men and women fought for our freedom. And on 15 August 1947, India became independent. As we celebrate our independence, our brave leaders fought for independence. Let's work together to do a strong and happy nation. Let's promise to work hard, respect our nation, and make India a better place for all. Jai Hind, Happy Independence Day. Let us begin with a patriotic song by the students of class UKG. Arman Khan, Abu Hamza, Musaqib, Abdul Malik. देश का सिपाही बोलो मेरे
but it also gives us the duty to protect and improve our nation. Let us work hard this duty well and make India proud. Thank you, Jai Hind. Let us begin a poem. Clap your hands for the students of class LKG. Clap your hands, listen to the music and clap your hands. Turn around, listen to the music and turn around. Stamp your feet, listen to the music and stamp your feet. Jump up high, listen to the music and jump up high. Wave your hand, listen to the music and wave your hand. Clap your hands, listen to the music and clap your hands. Turn around, listen to the music and turn around. Stamp your feet, listen to the music and stamp your feet. Jump up high, listen to the music and jump up high. Wave your hand, listen to the music and wave your hand. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. గౌరవనీయులైన ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు గారు, మేడం గారు, గురువులు అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సారా ఫాతిమా, 5వ తరగతిలో చదువుతున్నాను. ఈరోజు స్వతంత్ర దినోత్సవ పండుగ జరుపుకుంటాము. 1947 ఆగస్టు 15 ఎందరో మహానుభావులు గాంధీజీ, నెహ్రూ గారు, బాల్ గంగాధర్ తిలక్, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ అందరూ బ్రిటిష్ వారిను పోరాటాలు చేశారు. వీళ్ళందరి త్యాగాలతోనే మన దేశానికి స్వతంత్రం లభించింది. జై హింద్. And all my dear friends, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mohammad Khaja Hussain from 8th B. Today we are celebrating Independence Day, a pride day for all Indians. On 15 August 1947, India get the freedom after a long struggle against the British rule. Great leaders like Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose and Bhagat Singh led this movement with courage. We celebrate by hosting flag and singing national anthem. Thank you, Jai Hind. అయినా ప్రధానోపాధ్యాయులు గారికి ఉపాధ్యాయులు, నా పేరు సమీర్ ఫాతిమా. నేను 8వ తరగతి చదువుతున్నాను. 15 ఆగస్టు మన దేశ స్వతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాం. 1947లో ఈ రోజు భారత్కు స్వతంత్రం లభించింది. ఈ రోజు జాతీయ పండుగగా భావించబడుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం ఈ రోజున మన దేశ ప్రధానమంత్రి ఎర్రకోట జాతీయ పతాకాన్ని జాతీయ గీతం పాడుతూ జెండాలు వందనం చేస్తాము. ధన్యవాదాలు. मोहतरम सदर मुदर्रिस साहब, इंचार्जेस, टीचर्स और मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद रेहान 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं ताकि हिंदुस्तान आज़ादी के दिन यानी आज 15 अगस्त के दिन उन लोगों को याद करे और सलाम पेश करे जिन्होंने इस मिट्टी के लिए अपनी जान, अपनी खुशी, अपना घर सब कुछ कुर्बान कर दिया। हाँ, ये सच है कि आज़ादी कोई तोहफा नहीं है जो हमें आसानी से मिल गई। ये एक लंबी मुश्किल और खून से भरी हुई मेहनत का नतीजा है।
इस कहानी में ना ही एक जुबान या फिर ना ही एक मजहब था। ये कहानी थी पूरे हिंदुस्तान की। और इस कहानी में हमारे कई हिंदू मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स यानी रहनुमा जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, टीपू सुल्तान, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी कई फ्रीडम फाइटर्स यानी रहनुमा थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो एक ऐसे लीडर थे जो सिर्फ सियासी रहनुमा नहीं बल्कि एक आलिम और एक शायर भी थे। उनका सपना था कि एक ऐसा हिंदुस्तान हो जहाँ कोई बदलाव, हर कोई बराबर हो, जहाँ कोई भेदभाव ना हो। उन्होंने जेल की अंधेरी कोठरियों में सालों गुजार दिए मगर अपनी ज़बान से सच बोलना कभी नहीं छोड़ा। फिर आते हैं टीपू सुल्तान, जिन्हें हम शेर मैसूर के नाम से जानते हैं। टीपू सुल्तान ने एक बात कही थी कि शेर की एक दिन की जिंदगी लोमड़ी के 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है, बेशक। फिर आते हैं हमारे मेन हीरो जो कि बाबा हिंद के नाम से जाने जाते हैं, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने अपनी पूरी जिंदगी आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी। गांधी जी ने अपने आराम और सुकून को नज़रअंदाज करते हुए हंगर स्ट्राइक्स यानी भूख हड़ताल की ताकि लोगों में నా పేరు హంస. నేను 10వ తరగతిలో చదువుతున్నాను. ఈ రోజు మన దేశ చరిత్రలో గొప్ప రోజు. ఎందుకంటే మనకు స్వేచ్ఛ ఇచ్చిన రోజు ఇది. గాంధీ గారు, సుభాష్ చంద్రబోస్, భగత్ సింగ్ వంటివి మహాసన యాకుల త్యాగంతో మనం ఈ రోజు ఆజాదీని ఆస్వాదిస్తున్నాం. స్వాతంత్ర్యం అంటే కేవలం విదేశీ పాలన నుండి విముక్తి కాదు, అది బాధ్యతగా జీవించడం, దేశానికి సేవ చేయడం. ధన్యవాదాలు. My name is Mohammad Khaja Ruman. I am studying in 5th standard. Respected principal, teachers and my dear friends, today we have gathered to celebrating 78th Independence Day of India on 15 August 1947. India got freedom from British rule. After the struggle and sacrifice too many brave leaders, Independence Day is not just a holiday, it is a reminder that we must respect our nation, obey the law and contribute to the growth of India. Let us promise to be honest, hardworking and united citizens. Happy Independence Day to all. Jai Hind. ख्वाबों की दुनिया, उम्मीदों को जहां, रोशन है राह, है आसमान जवां। इल्म को नूर, हौसले की हवा, माने से पाएंगे हर एक मकाम। अज़्म हम पहचान है, नए ख्यालों की उड़ान है। मेहनत लगन हमारा ईमान, चमकेंगे हम, बनेंगे मिसाल, आगे बढ़ेंगे
जो जलते रहे नई दुनिया की उम्मीद बनी सच्चाई इल्म की रोशनी ले जाएगी हमको नीली बुलंदी नियम उसको हमारी पहचान रोशन करेंगे हर एक मीनार आज 15 अगस्त है वो दिन जब हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान 1947 का आजाद हुआ। यह आजादी अमर कुर्बानी से मिली। भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, गांधी जी, अब्दुल कलाम आजाद और सरदार ने अपनी जान कुर्बान की। उनका ख्वाब था कि एक ऐसा भारत हो जहाँ सब बराबर हो, तालिबानी हो, नफरत ना हो और मोहब्बत गालिब हो। आज हमारा फर्ज है कि हम ईमानदारी अपनाएं, नफरत को छोड़ें और इत्तेहाद के रास्ते पर चले। याद रखो, आज़ादी नेमत है, उसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। Please give a round of applause. Good morning everyone, respected principal, teacher and my dear friends. My name is Sheikh Muhammad Anwar and today we are proud to be on Independence Day. On this day in 1947, our India became free after many of struggle. Great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Rani Lakshmibai and many others gave their lives so that can live in free country. Independence Day is like a gift, but it came with a lot of sacrifice. We must love our country, follow the rules, study well and help each other. That is how we can make India even more beautiful. Let us promise today that we will also respect our nation and never forget the heroes who gave us freedom. Jai Hind. Let us begin with a hum Betia Islam Cake by the students of 4th standard Aisha, Sophia, Farhi, Anna Maskia. Please give a round of applause. Thank you.
पार्वती का बाप ठहराओ। पार्वती अब समय आ गया है आनंद जी के हाथ पीले कराने का। अपनी तो नंदिनी अभी 9 साल की है, उसकी तो खेलने और कूदने की उम्र है। देख पार्वती, लड़कियां पराए घर में अच्छी लगती है, कल से आनंद जी की पढ़ाई लिखाई बंद। पर पापा इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी गलती ये है कि तू एक लड़की, अगर लड़का होती तो क्या? तो पापा लड़का होती तो क्या? ये लड़की ज्यादा जुबान ना चला, वरना जुबान लग कर खींच कर बाहर निकाल दूंगा। पर पापा मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई को ना रोको। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र अपनी बाप की छाती पर बोझ बनकर ना बैठ। पर पापा मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई करने की है, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी किताबों का काम तमाम करके। पापा नहीं, पापा नहीं, पापा मत फाड़ो। छोरी, ये आपने क्या किया? आपने मेरी किताबों को ही नहीं फाड़ा, आपने मेरी किस्मत फाड़ दी, मेरी किस्मत। देख छोरी, ये किताबें सिर्फ लड़कों पर अच्छी लगती है, लड़कियों को तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। लड़का होती तो क्या पापा, लड़का और लड़की दोनों आंखों का समान होते हैं। देख आनंदी, ये एहसान मान के तू अब तक जिंदा है, कहीं बचपन में तेरा गला घोट कर मार ना दिया होता तो आज तेरी ये बकबक नहीं सुननी पड़ती मुझे। पर पापा मुझे चूल्हा जलाना अच्छा नहीं लगे। देख छोरी, जितना जल्दी और उतना जल्दी तू चूल्हा चलाना सीख ले, उतना तेरा लिए अच्छा होगा। तेरा विवाह तो होगा, वो भी करके कल ही। फिर इसके बाद आनंद जी की शादी गोपा राज्य से हो गई। 14 साल बाद उसके घर एक शिशु पैदा हुई। देखिए ना इसे क्या हो गया है। इसमें माता तो अंगार की तरह गर्म हो गया है, इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप ही ना कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे। माधव, ओ माधव, जल्दी से वीर को बुला कर लाओ। बाबू आंखें खोलो, बाबू तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है, आंखें खोलो। देखिए ना इसे क्या हो गया है, आंखें भी नहीं खोल रहा है। अब हमारा बच्चा कभी आंखें नहीं खोलेगा। क्या? ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बच्चे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। माधव, ओ माधव, अनंती बंद करो ये सब पागलपन। ऊपर वाले ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। ऊपर वाले ने तुम्हारा बच्चा नहीं छीना, तुम्हारे अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ती लिखती हो तो आज हमारा बच्चा जीवित होता। तुम अनपढ़ हो, अनपढ़। अनपढ़ नहीं हूँ मैं, अनपढ़ अब मैं पढ़ूंगी ताकि कल कोई और आनंदी को इलाज के बुआ में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश अनंती। ये लो अनंती, ये लो आनंदी तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया है, तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। आनंदी फिर इसके बाद अमेरिका चले गई अपनी पढ़ाई डॉक्टर मेडिसिन के लिए। उसकी बाबा की तबीयत यहाँ बहुत खराब है। लगता है मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। ऐसा मत बोलो डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलो। अमेरिका से एक डिग्री लेकर बड़ा डॉक्टर आया है, वहाँ चलकर देख लेते हैं। चलो चलते हैं। इसकी तो हालत बहुत खराब दिख रही है। इसकी तो तबीयत बहुत खराब दिख रही है। इन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। ऐसा मत बोलो, डॉक्टर साहब कब आते होंगे? लो आ गई डॉक्टर मैडम, मिलो उनसे। डॉक्टर साहब ने मेरी जान बचा ली, मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो, डॉक्टर मैडम। उन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई। लो आ गई डॉक्टर मैडम, मिलो उनसे। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। इस घड़ी भला आपकी क्या सहायता कर सकता है? वचन वचन चाहिए मुझे, कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? कैसा वचन? अरे श्यामलाल, तुम्हें मालूम नहीं, ये तुम्हारी बेटी आनंदी है, आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी डॉक्टर आनंदी?
हाँ बाबू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तूने चूल्हा और चूल्हे के अलावा और कुछ नहीं सोचा था। माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा अपराधी हूँ। नहीं बाबू नहीं, तूने तो मेरी पूरी जिंदगी हाथ पीले करा दी थी। माफ कर दे बेटी, मैं तेरा अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दे। बाबू तूने ही तो कहा था ना, बाबू तूने ही तो कहा था ना, बाबू मैंने तो तेरा एहसान चुकाया, याद है ना जो बचपन में तूने मुझ पर किया था, वही ताने सुना सुना कर जीते जी मुझे मार डाला था। मैं तेरा अपराधी हूँ बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं आज़ाद हूँ, मैं मुजाहिद आज़ाद हिंद हूँ, मैं सामाजिक कारकुन हूँ, मैं पहला हिंदुस्तान का वजीर तालीम हूँ। शुक्रिया, जय हिंद। Assalamu alaikum. My name is Yusuf Ali. I am studying 8th standard. I am Shahid Bhagat Singh. I am Gate Freedom Fighter. I have tackled British of India. I am the Gate Freedom Fighter. Thank you. Jai Hind. होगी हैरानी, अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज। कागज के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारा देश अपनी आजादी की 19वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर हमें महान स्वतंत्रता प्रेमियों को श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं ने हमें आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हमें अपने देश की एकता, राष्ट्र, संस्कृति की रक्षा करने में
जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। Let us begin with a test. मेरा नाम सैयद अहमद है। मैं पार्टी कक्षा का छात्र हूँ। 15 अगस्त के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा देश अपनी आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा है और यह दिन हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। आज के दिन 79 वर्ष पूर्व हमारे देश में ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्ति पाई थी। वे एक ऐतिहासिक दिन था जब हमारे देश के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और अंत में आज़ादी प्राप्त की। आज हमें अपने देश के एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने का संकल्प लेना होगा। हमें अपने देश की विकास और प्रगति के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें अपने देश के नागरिकों के कल्याण के लिए काम करना होगा और उन्हें बेहतर जीवन प्रदान करने का प्रयास करना होगा। आइए हम अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और इसे और भी मजबूत बनाने के लिए काम करें। आइए हम अपने देश के एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने का संकल्प लें और इसे हमेशा के लिए बनाए रखने का प्रयास करें। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को और एक बार शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान।
ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की पिंजरा, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, I love my India. ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया,
तरफ से देश के लिए खुद को कुर्बान करके शहीदों में मेरा भी नाम है। Let us begin with a संदेश से आते हैं सॉन्ग बाय 5th स्टैंडर्ड शेख अब्दुल रहमान, मोहम्मद काजिम अली, सैयद अनस अहमद, सैयद तलहा अहमद, नसीरुद्दीन। Please give them a big round of applause.
Chal
Thank you.
शुक्रिया अदा करती हूँ। माशाअल्लाह बहुत ही मेहनत की है आप लोग और अच्छी तरीके से గౌరవనీయులైన ప్రధానోపాధ్యాయుల గారికి, మేడం గారికి, ముఖ్య టీచర్లు, గురువులందరికీ, నా తోటి బాల బాలికలకు అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారములు. ఈరోజు స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. ఇక్కడ మన స్వాతంత్రం రావడానికి మన దేశంలో ఎంతో మంది నాయకులు ఎన్నో త్యాగాలు చేశారు. మహాత్మా గాంధీ ఎన్నో సార్లు జైలుకి వెళ్ళాడు. నెహ్రూ ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాడు. अपना देश के लिए आजादी आने के लिए जो है ना कितने ही लोग तो बहुत बहुत मुसीबत उठाए जो है. महात्मा गांधी जो है ना जेल में गए तो सब लोग को मालूम है. उस तरीका से आज करे तो बच्चे पूरा बहुत अच्छी तरीका से प्रोग्राम करे, अच्छी तरीका से पढ़ के आप लोगों के बड़ा होकर कुछ ना कुछ नेता बनना चाहिए. अरे आज की कविता कल की योद्धा हो जाता है. बहुत अच्छी तरीका से पढ़ के आप लोगों में एक महात्मा गांधी बन सकते, सरोजिनी नायडू बन सकते, नेहरू जी बन सकते. जो चाहिए वो पूरा पढ़ाई के साथ रहता है. अच्छी तरीके से माँ बाप का रिस्पेक्ट करके स्कूल जो है ना अच्छा पढ़ लेके आप लोगों की अच्छी तरीके से एक नेता के जैसे निकलना है बोल के उम्मीद करता हूँ. लेकिन सूरज और चांद दुनिया की रोशनी है और सिंपल सा मेरे जो है ना ह्यूमैनिटी रोशनी है. Respected dignitaries, teachers, dear students, and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, performances was very well. I want to appreciate the efforts of our teachers and my friends in the position of the parents and the students for giving their 100% to make it successful. Before discussing something, I want to know. Okay, before knowing, I want to say that in this generation, autism, attention that ऑटिज्म की बीमारी बहुत आम होते जा रही है इस जमाने में. उसके वजूहात क्या है? ऑटिज्म में बच्चे कान नहीं मिला सकते बराबर, अटेंशन नहीं दे सकते. अगर आप कुछ बोलेंगे तो बच्चे आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, मगर वो नहीं करेंगे क्योंकि अंदर लो कॉन्फिडेंस होते जा रहा है दिन भर. तो इसके वजूहात सामने ये आए हैं कि बच्चे का एक्सेसिव यूसेज ऑफ सेलफोन ज़्यादा इस्तेमाल करने से यह प्रॉब्लम हो रही है. क्योंकि जब पहले ज़माने में सेलफोन नहीं था, बच्चे क्या करते थे, उनके उम्र वालों से या अपने दादा दादी से माँ बाप से बात करते थे. बात जब करते थे उनकी जबान खुलती थी, फिर उनको रिस्पॉन्स भी आता था उस चीज़ का. आप लोग भी उनके सवाल का जवाब देते थे, उनसे बात करते थे. मगर सेलफोन में होता यह है कि बच्चे बस सुन रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, कार्टून सुन रहे हैं, रील्स देख रहे हैं. रील्स में तो बच्चे नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे डेवलप होते जा रहे हैं. बस रील्स देखते जा रहे हैं. पेरेंट्स के हर 2 दिन में 3 दिन में एक बार कोई ना कोई पेरेंट्स बोलते हैं, सर बच्चों को डराइए ना सर, घर में रील्स देख रहे हैं, घंटों फोन में रह रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे. तो इससे हो रहा है क्या, बच्चे से जब बच्चे सेलफोन से ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, उन लोगों को बस सुनने और समझने की आदत बनेगी, बोलने की आदत नहीं रहेगी वो लोग को. तो होता है कि जब कोई एक चीज हम रखे ध्यान लग जाता हर चीज को, उसी तरीके से बच्चों की बात करने के लिए ज्यादा नहीं रहेंगे तो उसके लिए बच्चों की जबान बंद हो जाती है. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है बच्चों को. कोई मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जितना हो सके आपके बच्चों से बात करिए. आप लोग जितना हो सकता समझिए, जितना हो सकता बच्चों को घर के पहले हम स्कूल वाले ये बोलते थे कि बच्चों को बाहर खेलने मत भेजो, अभी बोलना पड़ रहा है कि बच्चों को भेजो बाहर खेलने. आप लोग
क्योंकि ये जमाने के बच्चों में विटामिन डी की कमी बहुत रही है, हड्डियां कमजोर है। इसके वजह क्या है, घर में रहे हो, सेल फोन नहीं रहे 24 घंटे। और हमारा भी ये काम ये हो गया कि जब हमको कुछ काम करता, पहले जमाने में वालिदैन क्या करते थे, बच्चे जब उनको जब काम करता तो कुछ खेलने के लिए टॉयज देते थे, बच्चे उसी में खुश रहते थे, उसी से खेलते थे। मगर हम क्या करें कि खेलने के लिए बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, बच्चे हर किस्म के वीडियोस देख रहे हैं, जो कि नहीं देखना चाहिए वैसे भी वीडियोस आ जा रहे हैं बच्चों को। तो इससे यह हो रहा है कि बच्चा ऐप को ऐप से समझ रहा, बच्चा ऐप को अच्छी चीज से समझ रहा, बच्चे खाने के बच्चे को अंदाजा नहीं है कि वो ऐप है। तो इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, अगर बच्चों को आप अगर डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे, अगर आप कुछ बिजी है, बच्चों को सेलफोन से हमको दूसरी चीज कीजिए। आप किचन में कुछ काम रहा, बच्चों को आपके साथ दिखा दो, बच्चों से बात करते हुए आप लोग काम करो। मेरा कहने का मकसद यही है कि बच्चों को सेलफोन से जितना हो सका उतना अवॉइड करिए आप लोग। और इससे होना क्या है कि बच्चों का नींद भी नहीं आती बच्चों में। तो बच्चे अक्सर बच्चे लेट आ रहे हैं स्कूल को, तो उसकी वजह ये है कि रातों में बहुत देर से सोना, बहुत देर से उठना, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। स्कूल में बहुत सारे पेरेंट्स ये मसले लेकर आ रहे हैं। और आप सबसे ये भी गुजारिश करता हूँ कि बच्चा कुछ घर में नहीं सुन रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है घर में, बच्चा कुछ डिप्रेस हो रहा है, बच्चा कुछ खामिल हो रहा है, सैड रह रहा है, तो आप लोग देखो घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, हम कुछ बच्चे के लिए कमी कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ भी बहुत रूज में आ गई है कि पेरेंट्स भी अक्सर सेलफोन में रह रहे हैं, बच्चे के इमोशनल और साइकोलॉजिकल चीज़ों को फोकस नहीं कर रहे हैं। बच्चा जब भी कुछ कहना चाहता है, बच्चा से रो रहा है तो सीधा सेलफोन दे रहे हैं और बच्चा अपने काम में मसरूफ हो जा रहा है। तो फिर से मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ टीचर्स के एफर्ट्स को, वालिदैन के एफर्ट्स को, बच्चों के एफर्ट्स को, कि हमारा इस प्रोग्राम को बहुत सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी स्पीच यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Janab Sufyan Ashram Sahab, the coordinator of the school, Kufir teacher, Sujata teacher, in charge Sajida teacher, and all the lovely teachers. मैं आप सबको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी, क्योंकि इसकी बदौलत ही हम आज इस तरीके से जश्न मना रहे हैं और हमारी आज़ादी के साथ, हमारी चाहत के साथ हम जो दिल चाहे वो कर सकते हैं, ये बता पा रहे हैं। और यहाँ पर सब जो बैठे हुए हैं मासूम बच्चे, आज जो परफॉर्मेंस रहा बहुत ही शानदार रहा, बेहतरीन रहा। उसके साथ ही साथ तालियां अपने जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारी तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया जो एनकरेजमेंट के लिए आप लोग आए हैं। और ये बच्चों के लिए बहुत ही अहम है कि उनके पेरेंट्स बच्चों का साथ दें, उनकी तारीफ करें, उनकी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएं, उनको एनकरेज करें। दिन रात जब भी हो सके डिस्करेज कभी ना करें, बस एनकरेज करें। चाहे आपका बच्चा कुछ कमजोर हो, चाहे शानदार हो या दरमियानी दर्जे का हो, क्योंकि आपको ये कहना है कि आप सबसे बेस्ट हो। इतनी बात याद रखें, अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए हमेशा आपको चाहिए, खुसूसन पेरेंट्स को कहूँगी मैं, कि कहें कि आप सबसे बेस्ट हो। आप जो हो वो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो ये जो जज्बा है, ये जो हिम्मत है, ये जो हौसला है जो पेरेंट्स देते हैं, वो कोई नहीं दे सकता। इतनी बात याद रखिए आप लोग। और सबसे पहली चीज, यहाँ पर हम जश्न आज़ादी का जो फंक्शन हो रहा था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंसेस रहे बच्चों के। इसमें बच्चों की जो छुपी हुई सलाहियतें होती हैं वो भर कर आती हैं। और ये इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है
टीचर्स का। तो आज जो उनकी काविशें रही, जो कोशिशें रही, बहुत ही बेहतरीन रही। तो हमारे स्टाफ मेंबर्स के लिए भी आप लोग की तालियां हो जाएंगे, क्योंकि हौसला अफजाई से हौसला बढ़ता है। और हमेशा जिसकी तारीफ की जाए, हर कोई तारीफ का मोहताज होता है। इतनी बात याद रखिए कि मोहताज क्यों होता है? एनकरेजमेंट के लिए कि अरे आप अच्छा काम किए, आगे बढ़िए और थोड़ा आगे बढ़िए। अरे ये गलती हुई आपसे, कोई बात नहीं, इस गलती को सुधारिए। गलतियां होती रहती हैं, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह से हमारे स्टाफ मेंबर्स भी, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को इसी तरीके से लेकर चलते हैं कि आप बेस्ट हो, आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। आप देख रहे होंगे कि हमारे स्कूल में दिन ब दिन अल्लाह ताला के फजल करम से किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रही है और बच्चों की सलाहियतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। और हमारे टीचर्स की बहुत बड़ी काविशें हैं, बहुत बड़ी कोशिशें हैं कि बच्चों की सलाहियतों को किस तरीके से उभारा जाए, किस तरीके से उनको, उनके अंदर के छुपे टैलेंट को आगे बढ़ाया जाए। तो आधा हॉल तो खाली हो चुका है, लेकिन फिर भी जो पेरेंट्स हैं और जो प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे कहूँगी कि बच्चों, देश आज़ाद हो चुका है। हमारे इस्लाम में आज़ाद होकर ज़माना हो चुका, बहुत साल हो चुके, लेकिन हमको क्या करना है? हमारे इस्लाम में है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उससे वफादारी करें। क्या करें? जोर से बोलिए। हाँ, वफादारी करें, क्योंकि आप लोग फ्यूचर हो, इस कंट्री का, इस मुल्क का फ्यूचर हो। तो हमको क्या करना है? हमारे मुल्क को आगे बढ़ाना है। किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? अच्छी तरीके से पढ़ के, अच्छी पोस्ट हासिल करके, सिर्फ अपना भला नहीं, सबका भला करने की नीयत करें। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या करना है? बहुत अच्छा पढ़ना है, स्कूल को डेली आना है, स्कूल को पंक्चुअल आना है। पंक्चुअलिटी में टाइम से पहले यहाँ पर रहना है, टाइम पर आपको रहना है, क्योंकि जब हम पंक्चुअलिटी फॉलो करेंगे, रेगुलरिटी फॉलो करेंगे, तो अल्लाह ताला भी हमको आगे जरूर जरूर बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम कैसा है? जो वक्त, जो चीज होनी होती है वो होकर रहती है। मतलब वो वक्त, जैसा कि रात में क्या निकलते हैं? जोर से बोलिए। दिन में निकलते हैं क्या सारे? दिन में क्या निकलता है? तो हम कहते हैं कि ये दिन है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हमको भी क्या करना है? अपनी वक्त के हिसाब से चलना है। जैसा कि तारे रात में निकलते हैं और सूरज दिन में निकलता है। कभी सूरज रात में नहीं निकलता और तारे कभी दिन में नहीं निकलते। तो इसी तरीके से वो लोग अल्लाह ताला के वक्त को फॉलो कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोग भी क्या करना है? जो वक्त जिस तरह से इस्तेमाल होना है, जैसा कि स्कूल को टाइम पर आना, आने से पहले अच्छे तरीके से नाश्ता करना, नीट रहना, ड्रेस अच्छा पहन कर आना, और आपका जो स्कूल के बाद होमवर्क दिया गया है डेली उसको रिवाइज करना, पढ़ना या लिखना, जो भी टीचर दिए हैं वो करना। क्योंकि जो बच्चा घर में कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ता है उसे किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं होती। और तारीफ गवाह है, जो बच्चा स्कूल से जाने के बाद जो भी खेलना है, आपको आराम करना है, जो कुछ भी करना है करिए, लेकिन उसके बाद जो बच्चा डेली जो टीचर होमवर्क देते हैं या पढ़ने के लिए देते हैं या लिखने के लिए देते हैं, रिवीजन करता है और अच्छे तरीके से पढ़ता है, वो अल्लाह के करम से बहुत आगे बढ़ा। हिस्ट्री है ये, इतनी बात याद रखिए। और सबसे पहली चीज बच्चों और पेरेंट्स से भी कहूंगी कि नमाजों की पाबंदी करें। किस चीज की पाबंदी करें? ये तालीम जो है हमारी, ये एकेडमिक साइड जो है हमारी दुनिया के लिए है कि अच्छे से अच्छा पढ़ के अल्लाह ताला ने कहा कि बहुत ही बेहतरीन जिंदगी गुजारें। कैसी जिंदगी गुजारें? किस तरीके से हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं? अच्छा पढ़ने पर। किस तरीके से?
अच्छा पढ़ने का मतलब क्या है? रेगुलर स्कूल को आना, पंक्चुअलिटी फॉलो करना, टीचर जो पढ़ा रहे हैं क्लासेस में गौर से सुनना, पढ़ना और लिखना। उसके बाद घर को जाने के बाद 2 से 3 घंटे आप जो भी टीचर दिए हैं उसको लिखना, पढ़ना, रिवाइज करना। समझ में आ रहा बच्चों आप लोगों को? ये चीजें क्या है? दुनिया के लिए। ये चीजें किस चीज के लिए है? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि जब मैंने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, क्या बनाया है? अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो अशरफ वन जो अशरफ वो तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा। समझ में आ रहा आप लोगों को? तो हमको उस तरीके से जिंदगी गुजारना है, क्योंकि जानवर की जिंदगी गुजार के जब उसका वक्त आता है तो वो चला जाता है। जैसा कि डॉग है, पिग है, एलिफेंट है, वो लोग भी क्या है? जी रहे, लेकिन वो अशरफुल मखलूकात नहीं है। हम क्या है? अशरफुल मखलूकात हैं। तो हमको कैसा जिंदगी गुजारना है? बहुत ही बेहतरीन। तो बेहतरीन कब गुजार सकेंगे? जब आप अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। समझ में आ रहा आप लोगों को? जोर से बोलिए और एक बार बोलिए। हाँ, ये किस चीज के लिए कर रहे हैं मेहनत? दुनिया के लिए। किस लिए कर रहे हैं? फिर बोलिए। हाँ, तो सबसे पहली चीज क्या है? दीन के लिए हमको सबसे पहली चीज करना है। तो पहली चीज क्या है बच्चों? नमाज। क्या है? फिर बोलिए, फिर बोलिए। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है वो मुसलमान नहीं कहलाता है। तो हमको 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। फर्ज क्या है? तो जब हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ रहे हैं हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं ना? Yes. डेली और परफॉर्मिंग नमाज ना? आवाज जोर से नहीं आ रही तो कंफ्यूजन होना मेरे को। तो उसी तरीके से आपको घर जाके असर, मगरिब, इशा 3 नमाज पूरे के बाद और 1 नमाज कब होगी? फजर। स्कूल में आपको सुबह की नमाज हो रही है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप कभी भी नमाज को ना छोड़ें। और जो भी आयला है, जिसको कुरान शरीफ है, जिसको कुरान शरीफ आती है, कम से कम 1 आयत, एक पेपर भी नहीं हो सका तो कम से कम ये आदत बना ले कि 1 आयत तो भी पढ़े। कितना? इस तरीके से जब आदत हो जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जो बच्चा ये चीजों को फॉलो करेगा इंशाअल्लाह ताला उसको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा हो? पेरेंट्स से मैं गुजारिश करूंगी कि पेरेंट्स बच्चे क्या हैं? ये हमारा मुस्तकबिल है। पहले की मुसलमानों के हालात क्या हैं आप लोगों को पता है अच्छे तरीके से। तो ये बच्चे आपके पास अल्लाह ताला की अमानत है। इस बात याद रखिए, ये बच्चे जो हैं आपके पास अल्लाह ताला की अमानत है। ये अमानत को आप लोग को सही तरीके से परवरिश करना है, उनको सही परवरिश देना है। तो अच्छे तरीके से परवरिश किस तरीके से देंगे? आप दीन को फॉलो करेंगे तो दुनिया उनके पीछे भागेगी, आपके पीछे भागेगी। दीन से जो दूर हुआ वो बर्बादी ही बर्बादी की तरफ रवाना हो। इतनी बात याद रखिए कि माहौल बहुत खराब है। बच्चे छोटे होते हैं लेकिन उम्र छोटी है, लेकिन उनके ख्यालात बड़ों जैसे होते हैं। क्योंकि शैतान जब हाथ में आ जाएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शैतान हाथ में होगा, तो हाथ में शैतान है। तो ये कंट्रोल करिए आप लोग। आप माओ के हाथ में है सबसे बड़ी चीज। वालिद तो घर पर नहीं होते, लेकिन माओ का बहुत बड़ा रोल होता है। आप लोग यहाँ पर बच्चों की जिंदगी संवार सकते हैं, बच्चों की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। ये बात याद रखिए। फोन का आपका जो टाइम है, जैसे कि अभी सुफियान सर ने बताया कि किस
तरीके से ये जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है, फैमिलीज को बर्बाद कर रहा है, शादीशुदा जोड़ों में बर्बादी हो रही है, क्योंकि शादी की भी वैल्यू नहीं रही, बच्चों की भी वैल्यू नहीं रही। तो ये वाहियात चीज को अपने से जितना हो सके दूर रखें और अपने बच्चों की परवरिश अपने खरीद करके करें, अपने से दूर करके ना करें, क्योंकि ये अल्लाह की अमानत आपके पास आई हुई है। ये अल्लाह की अमानत को आपको सुधार के संभाल के अल्लाह की राह में आगे बढ़ना है और दीन दुनिया आखिरत में कामयाब करवाना है, क्योंकि माँ सबसे बड़ी नेमत होती है। वालिद तो जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों पे नीचे जन्नत है। ये तो बड़े बोल के बड़ा खुश होते कि हमारे चलो जन्नत हमारी माँ के कदमों के नीचे है, लेकिन कैसी माँ के कदमों के नीचे है वो भी समझ लीजिए। जो माँ अपने बच्चों की परवरिश को अच्छे तरीके से करेंगी, दीनी उसूल के हिसाब से करेंगी, अल्लाह ताला की फरमाबरदार बनाएंगी, तो वो माओ के कदमों के नीचे जन्नत यकीनन है। जो माएँ बच्चों की सही परवरिश नहीं करती हैं, उनकी देखभाल नहीं करती हैं, उनका सही तरीके से दीनी और दुनियावी जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो सही तरीके से केयर नहीं करती हैं, तो वो भी एक मानव में इस जन्नत जो कदमों के नीचे रखे हैं उससे महसूस हो सकती हैं। तो यहाँ के तो पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आजकल के माहौल के हिसाब से मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, खुसूसन माओं से, कि अपने बच्चों को दीन पर रुझान दीजिए। दुनिया की तालीम सेकेंडरी है, वो भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। ये एक हदीस नहीं है, कुछ फिर से कंफर्म हुई थी बात, लेकिन ये एक कौल है, तालीम हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। उस जमाने में सफर करना वो तो महीनों का और सालों का सफर होता था, तो तालीम हासिल करने के लिए कहा गया कि तालीम हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। तो तालीम भी बहुत अहमियत रखती है, ये दुनिया के हिसाब से अकल सोच समझदार बनाती है और बच्चों के अखलाक को सुधारती है। तो मैं गुजारिश बार बार कह रही हूँ कि अपने बच्चों को अपने खरीद करें, खुद भी फोन का इस्तेमाल कम से कम करें और बच्चों को तो जो लिमिटेड टाइम है, क्योंकि इस हिसाब से थोड़ा बहुत तो देना पड़ता, तो उस हिसाब से आप देख के उनको क्या बताना है क्या नहीं बताना है वो सोच समझ के उनके हाथ को दीजिए। जल्दी दे अपनी निगरानी, बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं। तो इस तरीके से बहुत बड़े नुकसान हो रहे हैं। तो मैं आप पेरेंट्स से बहुत गुजारिश करती हूँ, तकरीबन 4 या 5 बार हो गया, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है और अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बहुत बड़ी पूछ है कि ऐ बंदे, मैंने तुझे ये नेमत अता की थी, तूने क्या किया? ऐ मेरी बंदी, ये नेमतें मैंने तुझे अता की थी, तूने क्या किया? तो ये भी बहुत बड़ी पूछ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे यकीन है अल्लाह ताला की जात से कि मेरे पेरेंट्स इंशाअल्लाह ताला बच्चों को जो भी है दीन और दुनिया दोनों हिसाब से आगे बढ़ाएंगे और आपके सपोर्ट से इंशाअल्लाह ताला हम भी बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आज़ादी की बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो। तमाम पेरेंट्स का जो जा चुके हैं उनका भी शुक्रिया, जो बैठे हुए हैं डबल शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।